Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Today we will discuss types of quadrilateral and their properties. Let's start. Types of quadrilateral. Basically, quadrilateral are three types. First is parallelogram. Parallelogram. First is parallelogram. 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 Second is trapezium. 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 Or third is kite. 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 First is parallelogram. Second is trapezium. Or third is kite. तो क्वाड्रिलेटरल है. क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? एनी क्लोज फिगर विच कंटेन्स फोर साइड्स, फोर वर्टिसेस एंड फोर एंगल्स. तो पैरेललोग्राम में क्या होगा? देयर आर Two pairs of opposite side. Two pairs of opposite sides are equal and parallel. Parallel and equal. Parallel and equal. Parallelogram क्या होगा? Any quadrilateral in which two pairs of opposite sides are parallel and equal. This is parallelogram ABCD. Parallelogram ABCD in which two pairs of opposite sides are parallel and equal. AB और DC parallel है. One pair AB and DC are parallel, also equal. AB and DC are parallel and equal. This is one pair. और second pair AD and DC is also parallel and equal. AB is equal to CD and also parallel B. AB parallel to CD and AD equal to BC and AD parallel to BC. तो पैरेललोग्राम में क्या होगा? Two pair of opposite sides are parallel and equal. Two pair of opposite sides are parallel and equal. तो AB और CD क्या है? पैरेलल भी है और इक्वल भी है. AD और BC क्या है? पैरेलल है और इक्वल भी है. तो इस टाइप का जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा. एनी प्रॉब्लम? No, sir. In trapezium only one pair of side are parallel. Only one pair of side Are are parallel. parallel. क्या होगा? Only one pair of sides are parallel. इक्वल नहीं होगा इसमें कि only one pair of sides are parallel. बस only one pair क्या होगा? Parallel होगा. Sides का जो one pair है वो क्या होगा? Parallel होगा. Okay, sir. This is trapezium ABCD, CD. in which only one pair of sides are parallel.
It means AB and CD, AB and DC are parallel. AB parallel to DC. AB parallel to DC. This is trapezium. Third one is kite, in which two pair of adjacent side, two pairs of adjacent sides are equal. Two pairs of adjacent sides are equal. Two pairs of adjacent sides are equal. A, B, C and D. Two pairs of adjacent sides are equal. It means AB equal to BC. ये जो adjacent sides है AB और BC equal है, और AD and CD also equal. Two pairs of adjacent sides are equal. It means AB is equal to BC, AB is equal to BC and AD is equal to CD. तो काइट्स में क्या होगा? Two pairs of adjacent sides are equal. जो adjacent sides है उनका जो पेयर है वो क्या होगा? इक्वल होगा. It means AB is equal to BC and AD is equal to CD. Any problem? Now, parallelogram also classified. First is rectangle, square, third is rhombus. First is parallelogram. Parallelogram में क्या होगा? Two pairs of opposite sides are equal and parallel. Two pairs of opposite sides are parallel and equal. AB, CD. AB and DC are parallel and equal. AD and BC are parallel and equal. AB and CD equal and parallel. So AB parallel to CD. AD equal to BC, also parallel. AD parallel to BC. In parallelogram, opposite angles are equal. प्रॉपर्टीज देख रहे हैं जो पैरेललोग्राम है उसकी जो प्रॉपर्टीज क्या है. तो पैरेललोग्राम क्या होगा? एनी क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. और जो एडजेसेंट एंगल है, इट मींस जो एंगल ए वो किसके इक्वल होगा? एंगल सी के इक्वल होगा. एंगल ए किसके इक्वल होगा? एंगल सी के इक्वल होगा. एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी. पैरेललोग्राम में क्या होगा? जो अपोजिट जो एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. पैरेललोग्राम में क्या होगा? जो अपोजिट एंगल्स है, एंगल ए का अपोजिट एंगल कौन सा? एंगल सी है, इक्वल होगा. एंगल बी का जो अपोजिट एंगल है वो क्या होगा? इक्वल होगा. अपोजिट
opposite angles are equal. Opposite angles are equal. It means angle A is equal to angle C और angle B is equal to angle D. Opposite angles are equal. Third is, और इसमें क्या होगा, जो एडजेसेंट जो एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. ये जो एडजेसेंट एंगल है, एंगल ए और एंगल बी, आपस में कौन से एंगल होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे. एंगल बी और एंगल सी बी के आपस में सप्लीमेंट्री एंगल होंगे. एंगल सी और एंगल डी भी आपस में क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे. एंगल ए और एंगल डी भी क्या होंगे? आपस में सप्लीमेंट्री एंगल होंगे. तो इन पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. Adjacent angles are supplementary. Adjacent angles are supplementary. जो adjacent angles हैं इन पैरेललोग्राम वो क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे. Adjacent angles are supplementary. सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? Any two angles whose sum is equal to 90 degree, that is called complementary angle. If sum of two angles is equal to 180 degree, then these angles are called supplementary. कोई भी दो एंगल का सम कितना हो? 90 डिग्री हो, तब वो दोनों एंगल आपस में क्या हो? कौन से एंगल होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे. और कोई भी दो एंगल का जो सम है वो किसके इक्वल हो? 180 डिग्री के इक्वल हो, तो दोनों एंगल आपस में कौन से एंगल होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल होंगे. तो यहाँ पे जो पैरेललोग्राम है उसमें जो एडजेसेंट एंगल्स है वो क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे. इसका मतलब क्या हुआ? एंगल ए और एंगल बी क्या है? एडजेसेंट एंगल है, तो सप्लीमेंट्री है दोनों एंगल. एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. इसका मतलब क्या हुआ? जो भी एडजेसेंट एंगल है उन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा. इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा? 180 डिग्री होगा. एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. सिमिलरली वी कैन राइट एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल सी प्लस एंगल डी ऑल्सो 180 डिग्री. एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल ए प्लस एंगल डी ऑल्सो 180 डिग्री. तो पैरेललोग्राम में क्या होगा? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. फोर्थ वन, in parallelogram diagonals bisect each other. diagonals क्या होंगे? bisect करेंगे each other. diagonals are bisect each other. in parallelogram in parallelogram diagonals bisect each other. diagonal क्या करेंगे? एक दूसरे को bisect करेंगे. bisect each other. it means diagonal bisect करेंगे. इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा? ओ सी होगा. डायगोनल क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर. तो ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा? ओ सी होगा और ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा? ओ डी होगा. तो वी कैन राइट ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी. ओ बी इज इक्वल टू ओ डी. और जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. इन पैरेललोग्राम diagonals may or may not equal. diagonals may or may not equal. इसमें डायगोनल इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. तो इसमें प्रॉब्लम है किसी को? तो इसमें अपने 5 प्रॉपर्टीज डिस्कशन किया है. इसमें फर्स्ट तो क्या होगा? पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स हैं
वो क्या होगी, पैरेलल होगी और इक्वल होगी। सेकंड है कि अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल ए और एंगल सी इक्वल होंगे, एंगल बी और एंगल डी इक्वल होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी के एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। जो भी एडजेसेंट एंगल्स है वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, उन दोनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। फोर्थ प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एंड डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम मे और मे नॉट इक्वल। इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। नेक्स्ट, अब जो पैरेललोग्राम है उसको फर्दर क्लासिफाई करेंगे रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस में। नाउ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल 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 भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल भी क्या है, पैरेललोग्राम। दिस इज रेक्टेंगल ए बी सी डी। तो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अगर क्या हो, ईच एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। पैरेललोग्राम में ईच एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो पैरेललोग्राम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेक्टेंगल में। इसमें भी देखो ए बी और सी डी पैरेलल है और इक्वल है, और ए डी एंड बी सी ऑल्सो पैरेलल एंड इक्वल। तो इसमें क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, सी डी होगा। ए बी इज इक्वल टू सी डी ऑल्सो पैरेलल, तो ए बी पैरेलल टू सी डी। AD is equal to BC और AD पैरेलल टू BC। रेक्टेंगल में क्या होगा, ईच एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ईच एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। ईच एंगल 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री। इन रेक्टेंगल each angle is equal to 90 degree. Each angle is equal to 90 degree. It means angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to 90 degree. Third is angle in rectangle. In a rectangle, diagonals are equal. रेक्टेंगल में क्या होगा, डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इन रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में तो क्या था, डायगोनल इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बट इन द केस ऑफ रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल। इन रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल, इसका मतलब AC इज इक्वल टू क्या होगा, BD होगा। AC इज इक्वल टू BD। डायगोनल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इन रेक्टेंगल डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम में भी क्या था कि डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। इन रेक्टेंगल diagonal bisect each other. In rectangle, diagonal bisect each other. डायगोनल क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ,
ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी. ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी. इसमें प्रॉब्लम है किसी को? हाँ सर. नो सर. Now next is square. Next is square. Next is square. Square भी क्या है? एक पैरेललोग्राम है. स्क्वायर भी क्या है? पैरेललोग्राम है. ए बी सी डी. इसमें क्या होगा? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री. एबीसीडी क्या स्क्वायर है और स्क्वायर इज आल्सो पैरेललोग्राम. अब इसमें क्या होगा? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ऑल साइड्स आर इक्वल. ऑल साइड्स आर इक्वल इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी. ऑल साइड्स क्या होगी? इक्वल होगी इन द केस ऑफ स्क्वायर. ईच एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा. ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. इन स्क्वायर ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. स्क्वायर में क्या होगा? ईच एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा. इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री. इसमें भी क्या होंगे? डायगोनल्स इक्वल होंगे इन द केस ऑफ स्क्वायर. इन द केस ऑफ स्क्वायर डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर. diagonals in square में क्या होगा? diagonals क्या होंगे? इक्वल होंगे और बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर एट परपेंडिकुलरली. इन स्क्वायर diagonals are equal. diagonals क्या होंगे? इसमें भी इक्वल होंगे. इसका मतलब AC इज इक्वल टू BD. AC इज इक्वल टू BD. डायगोनल्स आपस में क्या होंगे? इसमें इक्वल होंगे. इसका मतलब जो AC जो डायगोनल है वो किसके इक्वल होगा? BD डायगोनल के इक्वल होगा. AC इज इक्वल टू BD. AC इज इक्वल टू BD. अब इसमें जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट भी करेंगे और कहां पे करेंगे? परपेंडिकुलरली. इसका मतलब डायगोनल बाइसेक्ट तो कर ही रहे हैं. डायगोनल क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर और कहां पे करेंगे? परपेंडिकुलरली. इसका मतलब जो एंगल जो फॉर्म होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा. एंगल जो फॉर्म होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री. इन स्क्वायर diagonals bisect each other at 90 degree. In square diagonals bisect each other perpendicularly. In square diagonals bisect each other perpendicularly. डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे. इसका मतलब कि OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD, OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD. और जो एंगल से फॉर्म होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री. डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं और जो एंगल जो फॉर्म होगा इनके बीच में, डायगोनल के बीच में, वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा. इट मींस एंगल AOB 90 डिग्री, एंगल BOC 90 डिग्री, एंगल COD 90 डिग्री, एंगल AOD 90 डिग्री. इसमें प्रॉब्लम है किसी को? नो सर. नाउ नेक्स्ट इज रोम्बस.
नेक्स्ट इज रोम्बस. Next is rhombus. Rhombus is also parallelogram. Rhombus is also parallelogram. A, B, C, D. In the case of rhombus, all sides are equal. रोम्बस में क्या होगा, all sides क्या होगी, इक्वल होगी. all sides are equal. It means AB is equal to AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. इसमें भी क्या होगा, अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगी. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अपोजिट एंगल्स are equal. In the case of rhombus, opposite angles are equal. Opposite angles are equal. It means angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D. Angle A is equal to angle C or angle B is equal to angle D. Third, diagonals are not equal. Diagonals are not equal. Diagonals are not equal. Diagonals are not equal. In the case of rhombus, diagonals are not equal. Diagonals are not equal. तो स्क्वायर और जो रेक्टेंगल है उसमें तो क्या होंगे, डायगोनल्स इक्वल होंगे. रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे और पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. तो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट परपेंडिकुलरली. डायगोनल्स इक्वल नहीं है बट डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे परपेंडिकुलरली. इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल जो फॉर्म होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा. ये भी 90 डिग्री, 90 डिग्री. और डायगोनल क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर एट परपेंडिकुलरली. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर perpendicularly. Diagonals bisect each other perpendicularly. It means OA is equal to OC, OB is equal to OD. Diagonal क्या करेंगे, bisect करेंगे each other at perpendicularly. OA is equal to क्या होगा, OC होगा और OB is equal to क्या होगा, OD होगा. OA is equal to OC and OB is equal to OD. OB is equal to OD. और जो एंगल जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री. With diagonals bisect each other at 90 degree या diagonals bisect each other perpendicularly. इसका मतलब जो एंगल जो होगा, एंगल AOD 90 डिग्री होगा, एंगल COD 90 डिग्री होगा, एंगल BOC कितना होगा, 90 डिग्री होगा और एंगल AOB कितना होगा, 90 डिग्री होगा. इसमें प्रॉब्लम है किसी को? No sir. तो ये जो क्लासिफिकेशन था टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड देयर प्रॉपर्टीज. तो इसमें आज की क्लास में प्रॉब्लम है किसी को? No sir. ओके, वी विल टू कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू. Yes, sir.